If you guys live in the UK and you've never been to Turkey, then what are you even doing in the UK? Hi guys, this is me Janvi and welcome back to my channel. This is going to be my Turkey vlog, but I've already come back from Turkey and I am in the UK now. But मैं पूरा ऐसे Turkey का vlog नहीं बना पाई like proper wherever I'm going and I'm talking and doing stuff. I couldn't do that because I wanted to enjoy more and wanted to be less on my phone. So I decided to just take the shots and come back and explain you everything like what's going on, because अगर मैं बोल के नहीं समझाती तो you guys will never know what's happening in that video जो मैंने बनाया उस हिसाब से. I'm messed. Okay. So what I'm gonna do is I'm gonna explain you the scenario and how you can travel from UK to Turkey conveniently, easily. So starting off with the flights and stuff, I went with Wizz Air, which is a budget airline. So I booked my tickets for £55 return, and that's cheap, guys. I mean, what are you talking about? So that's cheap. £55 is a good deal. I mean, अगर आपको कुछ ऐसा मिलता है तो just go grab the deal. So I went in November. And November, अगर आप Google पे search करोगे ना, I'm gonna put a thingy in here and you can see. They say that November is the best month to travel to Turkey, especially Cappadocia, क्योंकि वहाँ पे hot air balloons and ये सब बहुत अच्छा हो रहा होता है उस टाइम पे. But इस जर्नी में बहुत सारे ups and downs हुए हैं and can't tell you guys, बहुत ही ज़्यादा problematic सी ट्रिप रही है, but we enjoyed a lot as well. So मैं गई थी and few of my friends, they were traveling from India. So they came from India and I traveled from here to Turkey alone by myself. And we stayed in Istanbul. Second day, we flew to Cappadocia, 2 days there, and then flew back to Istanbul. And Istanbul, we stayed 2 more days. So all over 5 days, and we just went back. But I think वो trip ही नहीं होती जिसमें miss happening now. Miss happenings हुई हैं, बहुत सारी miss happenings हुई हैं, ठीक है. I'm just gonna put the chunks of the videos and I'm gonna put a voiceover and tell you guys what is actually happening in there. But before that, if you guys want to know, my tickets were Wizz Air थी मेरी airline, that's a budget airline. So उसमें मुझे allowance थी सिर्फ एक बैकपैक ले जाने की, जिसमें मैंने अपना सामान एक्चुअल में फिट कर लिया. ऐसा मुझे लगा था कि मैंने अपना सामान फिट कर लिया है, but mishaps and problems are on the way, guys, always. मैं यहाँ से जब गई, मैं निकली, मैंने आई थिंक कुछ भी शूट नहीं करा यहाँ से जाते हुए, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा मतलब उसमें थी कि भाई मेरा सब कुछ हो जाए एक बार एंड देन आई जस्ट स्टार्ट शूटिंग स्टफ. मैं यहाँ से गई, आई बुकड अ ट्रेन. आई लिव इन गिलफर्ड, सो आई वेंट फ्रॉम गिलफर्ड टू गैटविक. मेरी गैटविक से फ्लाइट थी एंड इट्स जस्ट डायरेक्ट ट्रेन फ्रॉम गिलफर्ड टू गैटविक. तो आई वेंट फ्रॉम गिलफर्ड टू गैटविक. इट वॉज अबाउट लाइक 45-50 मिनट्स. देन एयरपोर्ट पे जाकर सबसे पहली चीज़ आप उस पर लगे. आई वॉज द फर्स्ट पर्सन टू स्टैंड इन द लाइन, क्योंकि मैं बहुत जल्दी निकल गई थी. आई लुक लाइक अ किड राइट नाउ. I always look like a kid though, but yeah, more kiddish. Ignore this. I'm gonna do my skincare as well. So actually में होता क्या है, मैं वहाँ पर जाती हूँ and I was the first one standing in the queue there. जैसे ही बोर्डिंग ओपन होती है, मैं जाती हूँ खुशी खुशी and I'm like, hi, here's my passport and here's my visa. So visa के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होता है. I mean you can do it by yourself as well. मेरे जो इंडियन दोस्त हैं उन्होंने I mean जो इंडिया से आ रहे थे उन्होंने एजेंट से करवाया था. But if you're in the UK, you don't need someone to do it for you. I literally did it by myself and I got it. Like जैसे मैंने पेमेंट करी and they were like, here's your visa downloaded. तो मैंने डाउनलोड कर लिया था. तो ई वीज़ा यू रिक्वायर्ड, मेरे को देने पड़े 50 quid. I think it was £50 around something, but yeah, it's okay, it's cheap there as well. So 50 quid for that. And yeah, as soon as I went to that girl, this was this Indian lady sitting on the counter and specifically I was praying कि मुझे इंडियन बंदा मिल जाए so I can like convince people. But ये सारी चीज़ें मेरे पे उल्टी पड़ गई. तो what had happened is कि मैं उसके पास जाती हूँ और वो मुझे बोलती है कि भाई अपना बैग दिखाओ ज़रा. तो वहाँ पे ना मैंने अपना बैग दिखाया. मेरा बैग था बैकपैक. तो वो बैकपैक ना एक्चुअल में होना कैसा चाहिए, जैसे आपका एक लैपटॉप बैग होता है, बट मेरे बैग में कपड़े थे तो मेरा बैग एकदम फ्लफी हो गया है. वो मुझे कहती है एक्सक्यूज़ मी, आप जाके अपना बैग ही उस एक वहाँ पे ना एक वो होती है वेइंग सा स्केल होता है, तो वहाँ पे एक ऐसे सेक्शन बना होता है, उसके अंदर आपको अपना बैग फिट करना होता है वर्टिकली. तो मुझे कहती है वर्टिकल करके ऐसे बैग डालो उसके अंदर. तो मैंने बोला कि क्लियरली मेरा बैग इतना फ्लफी है और वो इतनी सी जगह है जिसमें सिर्फ लैपटॉप बैग घुस सकता है, जिसमें चार्जर भी ना हो लैपटॉप का, ऐसे लेजिट इतना सा स्पेस था उसमें. वो कहती है इसमें डाल के दिखाओ. मैंने कहा
आर यू ब्लाइंड और समथिंग, बिकॉज आई क्लियरली कैन सेंस कि ये इसके अंदर नहीं जाएगा. एंड शी वाज लाइक अगर ये नहीं जा रहा तो यू हैव टू पे फॉर इट. एंड आई वाज लाइक व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट. भाई वो बंदी मेरे पीछे पड़ गई. वो मुझे कहती है कि नहीं. मैंने कहा यार कुछ तो कर दो ना एटलीस्ट. मतलब मैंने कहा एक काम करते हैं, I'll go, I'll wear my jackets and stuff. इसमें जैकेट है, so that's why I think it's fluffy. But उसमें जैकेट नहीं थे actually. I was wearing the jacket and थोड़े से जंपर्स वगैरह थे. तो what did I do? मैंने जैकेट्स जंपर्स वगैरह निकाले. मैंने एक जंपर 2 जंपर पहने और मैंने थोड़े जंपर ऐसी साइड पे रखा ही. मैंने कहा देखी जाएगी, चलेगा कपड़े, मुझे नहीं पता. उस इंडियन बंदी को मैंने इतना समझाया. मैंने कहा मैम कुछ तो करो आप ना, मतलब समझो ना इस बात को. इतना सा मतलब थोड़ा सेंसिबल हो जाता है इंसान, थोड़ी हेल्प भी कर देता है. बट उसने नहीं करी. शी डिसाइडेड नॉट टू हेल्प मी एंड आई वाज लाइक ओके. उसने मुझसे लिए 50 पाउंड. मैंने कहा दफाओ. 50 पाउंड दिए. मैंने कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं. अब मैं आगे जाती हूँ बोर्डिंग वगैरह देख के 50 पाउंड में. मेरा एक तो माइंड फक यहीं हो गया आधा कि मेरे को और पैसे देने पड़े यार खामा खा. मैं गई अपना कॉफ़ी पी. एंड देन मेरे जो दोस्त थे, मेरे मतलब वन ऑफ माई फ्रेंड केम टू पिक मी अप फ्रॉम द एयरपोर्ट. फिर वो आया वहाँ पर. उसके बाद बीच में इतना फकअप नहीं हुआ, बट मैं चली गई आगे आराम से. So this is our first stop and first Airbnb in Istanbul. Welcome home. We chose Airbnbs because we wanted a cute, aesthetic, compact places and I think it looks perfect. Cute है, बाहर balcony भी है तो बढ़िया है. ठीक है यार, cute है. This is the bathroom guys. Beauts. Surprising है यार. हमने फिर रेस्ट किया इस दिन एंड देन हमें अगले दिन सुबह उठ के टाइम से जाना था इस्तांबुल घूमने, क्योंकि हमारे पास सिर्फ नेक्स्ट डे था. एंड देन उसके अगले दिन हम लोग जा रहे थे कैपेडोकिया. तो हम लोग टाइम से सो गए, ऐसे ही खा पा के थोड़ा सा, कहीं बाहर ज़्यादा नहीं गए. बट नेक्स्ट डे जब हम उठे तो हम तैयार व्यार होके निकले एंड देन दिस हैपेंड गाइज. डू यू गाइस स्पीक इंग्लिश? I reached out to this group of girls and I asked them, do you guys speak English? And there were like 5 or 4 girls standing there. तो सब ने ना एक लड़की की तरफ पॉइंट किया कि सब, मतलब rest of the 4 girls were pointing at one girl like ये बोलती है English. And then she turned back and she was like, no, I don't. And I was like, okay. अगर तुम नहीं बोलना चाहते इंग्लिश तो तुम ये बोल दो कि मैं ट्रांसलेटर पे करके तुम्हें बता देती हूँ कि मुझे क्या पूछना है, क्योंकि मुझे ट्राई ना फिगर आउट अ वे. हम बाहर नहीं निकल पा रहे थे. तो गूगल मैप्स भी बहुत शेडी हो जाता है कहीं ऐसे जब ज़रूरत हो ना गूगल मैप्स की तब. तो मैंने कहा यार ये क्या है. और सबसे पहली चीज़ ही हो गई फर्स्ट डे उठते ही हमने ये चीज़ मतलब फेस कर लिया. मुझे लगा कि व्हाट इज़ हैपनिंग, एक्सक्यूज मी. वेलकम टू फर्स्ट डे ऑफ आवर इस्तांबुल ट्रिप. आई मीन टर्की ट्रिप. वी टुक द ट्राम एंड देन जो भी लास्ट स्टेशन आया हम वहाँ उतर गए. किसी मार्केट में तो आ गए हैं हम, बट नाम नहीं पता इस मार्केट का. तो क्या मस्त वाइब है भाई इस जगह की. हम थोड़ा सा आगे वॉक करके आए. इतनी प्रिटी मार्केट है और इतना प्रिटी वेदर भी हो रहा है आज. बहुत ही मज़ा आ रहा है. लोग चिल कर रहे हैं अपना इधर उधर मार्केट. ओ भाई द थिंग आई वाज डाइंग फॉर. फाइनली उस जगह आ गई हूँ जिस जगह की वजह से मैं टर्की आई हूँ. बकलावा ना होता तो मैं टर्की ना आती, सच बता रही हूँ. एंड इट्स अ वेरी प्रिटी प्लेस दो. टर्की आओगे तो हाफिज़ मुस्तफ़ा तो आना भाई. ओनली प्लेस वी वांटेड टू विजिट, ब्लू मॉस्क. और वहाँ लिखा है क्लोज्ड अंटिल 2:30 और अभी टाइम हो रहा है 12. बट वहाँ पे हगिया सोफिया म्यूज़ियम है, वहाँ जाते. आफ्टर द म्यूज़ियम वी जस्ट वेंट टू द 7 Hills रेस्टोरेंट. खाना बहुत अच्छा नहीं था बट द व्यू वॉज ऑन टॉप एंड इट वॉज अमेजिंग. If you go there, just don't forget to feed the seagulls because that was the best part about that restaurant. After that, we finally went to the Blue Mosque there. As soon as I entered and I saw this big, huge tomb from inside with the proper marble infrastructure, बहुत amazing था. I mean, it was very pretty. I think camera really can't do the justice to the beauty of that mosque. And yeah, it was a good environment and the vibes was very good inside as well because people were praying. काफ़ी बड़ा mosque था, like बाहर भी बहुत ज़्यादा space थी and then अंदर जाके entrance थी इस mosque की, तो we really liked that as well. And then we went out and we explored the markets of Istanbul. वहाँ उस area की जितनी markets थी हमने देखी. And then we finally ended up at this Spice Bazaar and वहाँ हमने चाय खरीदी. Oh my god, we got cholesterol tea, we got anti-oxidant tea, we got this anti-inflammatory
tea as well, but the teas were quite expensive, so we spent around 2200 just on the tea, 2200 liras just on the teas. And काफ़ी अच्छी market है. I think I really recommend this place. You should really go and check the vibe. I think we took the tram again and we went back home because we had a flight next morning. And then later in night we went for dinner and a party in Turkey, which was basically a Turkish night. And I really loved the Turkish night. कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर vibe बहुत amazing थी. I mean, if you go Turkey, I would suggest you guys to go there. आज तो इतना ग्लूमी वेदर हो गया है. हम लोग उठे हैं, पूरे दिन से बारिश हो रही है आज. बट लकीली आज हमारा यहाँ पे लास्ट डे है. नॉट लास्ट डे, वी गोना कम बैक, बट वी आर फ्लाइंग टू कैपेडोशिया नाउ. एंड लेट्स सी, कैब बुला लिया, भागती हूँ. ये जो मैंने बोला है ना कि अब मुझे लेट हो रहा है, मैं भागती हूँ, इस भागने के चक्कर में हमें इतना भागना पड़ा कि हम लेजिट तब तक भागे हैं जब तक हम फ्लाइट में नहीं बैठ गए. सब भागे हैं. हम लोगों ने कैब ली. हम लोगों ने कहा बारिश हो रही है, कैब लेते हैं, कोई बात नहीं, कैब से चले जाते हैं, क्योंकि जो हमें दूसरे एयरपोर्ट जाना था और वो एयरपोर्ट था बहुत एकदम एज पे इस्तांबुल के, और इट वॉज लाइक 1.5 और मे बी 2-ish आवर. हमारे ड्राइवर हमसे बात करता है, वो बोलता है कि आज तो बहुत सारी फ़्लाइट कैंसिल है, तुम्हारी फ़्लाइट पक्का कैंसिल नहीं हुई. मैंने कहा नहीं हुई, अभी तक तो डिले वही दिखा रहा है कि मतलब स्टेटस ऑन टाइम है. तो बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ. तो उसने ना, भाई साहब ने हमारी एयरलाइन को कॉल कर दिया. उसने मेरी टिकट देखी, उसने एयरलाइन को कॉल करा, उसने बोला ऐसे. तो बोलता कि आई हैव अ गुड न्यूज़ फॉर यू, योर फ्लाइट इज़ नॉट कैंसिल बट इट गॉट डिले. हमारी फ़्लाइट थी 1 बजे और वो बोल रहा है कि आपकी फ़्लाइट हो गई है, सॉरी 11:30 बजे हमारी फ़्लाइट थी. एंड उसने बोला आपकी फ़्लाइट हो गई शाम के 6 बजे, डिले है फ़्लाइट. तो उसने बोला कि कोई बात नहीं, अगर आपको वापस जाना हो ना तो आई विल बी वेटिंग हेयर फॉर यू, यू कैन कम आउट एंड देन आई विल टेक यू बैक. हम उसे ऑलरेडी इतने पैसे दे के यहाँ तक आए. भाई हम वहाँ पहुँचे, ठीक है, हम सेल्फ चेक इन वगैरह सब किया, भाग रहे हैं, ठीक है. और हम ना खाना ले रहे हैं बर्गर किंग पे खड़े होके. अनाउंसमेंट होती है कि भाई लास्ट कॉल है, अब तुम नहीं आए ना तो कोई, हम खड़े हुए खाना ले रहे हैं और लास्ट कॉल चल रही है हमारे लिए. तो हमें पता लगता है हमारी फ्लाइट डिले नहीं है. भाई हाँ, कुछ सामान उठा रहे हैं, कोई खाना, कोई पीना, ऐसे करके सब भाग रहे हैं. मैं गेट की तरफ भाग रही हूँ कि भाई मेरे को फ्लाइट नहीं छोड़नी, क्योंकि इट इज़ अ बिग नाइटमेयर फॉर मी कि मेरी फ्लाइट मिस हो जाए. मेरे लिए बहुत बड़ा नाइटमेयर है. आई रियली कांट डू दैट. जो हमारा गेट था ना, वो पता नहीं कहाँ एकदम ऐसे गोल घूम के नीचे जाके कहीं था. तो अब सब भाग रहे हैं, सब इधर उधर हो गए यार. फाइनली हमारे, मेरे से आगे 2-4 बंदे थे, मैंने सबको कॉल किया, सब आए. एंड देन हमने फाइनली फ्लाइट पकड़ ली. एंड एज सुन एज वी reached to the gate, it started snowing in Istanbul as well. तो बेसिकली हमारी फ्लाइट डिले ही हो गई, बट 6 बजे तक नहीं. बस लाइक उन्होंने हमें बिठा दिया उसमें प्लेन में. इस सब सिनारियो के अंदर भाई साहब ने क्या किया, भाई साहब जी ने प्लेन लैंड करवाया और लैंड करवा के वो इससे बाउंस बैक होके वापस उड़ा दिया. उससे लैंडिंग नहीं हुई, ठीक है. पूरे एयरक्राफ्ट में शांति हो गई. भाई सब देख रहे हैं कि ओ माय गॉड ये क्या हो गया है. और ये मेरे लिए मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस नहीं था, मेरे साथ पहले भी हुआ था, बट जब फर्स्ट टाइम मेरे साथ ये हो रहा था मुझे पता ही नहीं लगा था ये हुआ क्या है. मुझे लगा लैंड नहीं हुआ होगा, बट अब मैं एकदम बिल्कुल, मैं लैंडिंग रिकॉर्ड करी थी, वो बिल्कुल क्लियरली ये हो गया मेरे साथ. जय माता दी. कैसे लैंड होगा, बहुत हिल रहा है यार, बहुत ज़्यादा. पता नहीं अब ये विंड तेज़ है क्या है. ओ यहीं लैंडिंग है भाई. 3, 2, 1. लैंड हो गया भाई. थैंक यू बाबा जी. क्या बात है, सब ताली हो रही है, क्या बात है. सब इतना डर गए, सब ताली हो जाए. भाई बच गए भाई, जिंदा.
यहाँ से कैसे जिंदा में तालियां सुनी मैंने। सच में भाई मेरे साथ भी फर्स्ट टाइम किसी ने इतना अप्रिशिएट किया भाई। शुक्र है तूने लैंड करा दिया। नाम नहीं पता। ओ बुरा रास्ता यार। हमने किया था, ठीक है। रूम नंबर चेक करो 111। हाउ लकी। बट वो मेरा रूम नहीं है, ये हमारा रूम है। सॉरी गाइस, लुक हाउ प्रिटी इट इज। आई मीन वाओ यार, मतलब मेरे को इतनी, मतलब मुझे एक्सपेक्टेशंस थी, मेरे को ना बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस थी इस वाले से। लुक एट द बाथरूम यार, हाउ प्रिटी, क्यूट लग रहा है। मुझे एक्सपेक्टेशंस थी इस वाले से, बट द प्रॉब्लम इज नो, देयर इज नो प्रॉब्लम। बट कल ना स्नो होगी और हमारे पास बालकनी भी है, लाइक वी कैन गो आउट एंड वी कैन सिट हियर। पैटियो है, हाउ प्रिटी इट इज। लाइक हमने ना उससे पूछा है कि क्या क्या कर सकते हैं, तो उसने सजेस्ट किया है कि हम लोग स्कूटी ले लेते हैं। हम लोग सारे मतलब 2 स्कूटी ले लेते हैं, तो हम लोग स्कूटी लेके जा सकते हैं अभी। स्कूटी लेके अभी जा सकते हैं हम लोग। और फिर वो कह रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट हैं। मैं खुश हो गई सुन के, क्योंकि इस्तांबुल में ना कुछ भी नहीं मिला हमें ढंग का। आई मीन खाने को लेके ना इस्तांबुल में हमें ढंग से खाना मिला, और बहुत भी खाना मिला। मतलब मैं ये सोच रही वेज में एटलीस्ट दे कुड हैव सर्व्ड फलाफल्स, बट फलाफल इतने गंदे। मैं इतनी खुश होती थी लंदन में फलाफल खा के, और मुझे यहाँ से पता लगा कि भाई ये क्या गंदे फलाफल दे रहे हैं लोगों को। मतलब लंदन में ही फलाफल बेटर मिल रहे हैं। मुझे जाना पड़ेगा डिफरेंट कंट्री टू गेट अ फलाफल, गुड फलाफल। बट वेजिटेरियन भी इतना अच्छा नहीं मिला हमें। मतलब हमने हमस ली, आई लव हमस, आई डोंट नो व्हाई बट आई लव हमस, पर इतनी गंदी हमस मैंने लाइफ में कहीं नहीं खाई होगी जितनी गंदी हमस मैंने इस्तांबुल में खाई है। अगर आप इस्तांबुल जा रहे हो हमस मत खाना भाई, और अगर आप वेजिटेरियन हो ना प्लीज़ थोड़ा अपना ध्यान रखना, क्योंकि वहाँ तो नहीं चल पाएगा आपका। सिटी इज़ वेरी प्रिटी, लाइक इस्तांबुल इज़ बहुत प्रिटी, बट इफ़ यू टॉक अबाउट पीपल देयर, मैंने सुना ही था कि दे आर लाइक रूड, बट आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ पीपल रूड नहीं है यार। मतलब उनको लैंग्वेज नहीं आती तो इतना बॉदर नहीं करते कि नहीं हमें नहीं आती, हम नहीं बता रहे, या हमें नहीं पता, किसी से पूछ लो। ठीक है भाई, ओके भाई। बैड न्यूज़ एंड सैड न्यूज़ ये है कि हमारा हॉट एयर कैंसिल हो गया है, हॉट एयर बलून राइड कैंसिल हो गई है बिकॉज ऑफ द वेदर। लाइक वेदर इज़ नाइस, बट बिकॉज ऑफ द विंड स्पीड they are saying that we can't do hot air balloon for another 4 days. क्यों नहीं हो पा रहा है? बट हमारे इंडियन होंगे बहुत हैप्पी। दिन में तो देख नहीं पा रहे हैं, इसलिए रात में ही अच्छा लगता है। ये हमारा शेख दोस्त है। अदावर दे। क्या? अदावर दे। डेली डोज ऑफ कॉफी वाली शॉप में हमारा सुबह टूर प्लान है। हमने रेड टूर लिया, अब हमें ग्रीन पे स्विच करना है या हमें रेड टूर ही करना है? ओह गेरा, तो ग्रीन टूर में आप ये जगह देखोगे, रेड टूर में, रेड टूर कहाँ है? वैसे रेड टूर तुमने खाली पता है उसके लिए चूज किया पॉटरी क्लास के लिए। हाँ, क्योंकि मुझे दिख रहा था वो अलग से मुझे। ऑब्वियसली पॉटरी तो करनी है भाई, व्हाई नॉट, लाइक व्हाई नॉट। अरे वो किधर है रेड टूर? पानी भी दिखाएंगे ग्रीन टूर में। हॉर्स राइडिंग, टर्किश नाइट शो, ये जो भी है ये सब होता है यहाँ। हॉट एयर बलून भी होता है, लेकिन वो तो होगी है कैंसिल। रेड क्यों नहीं है इसमें? यही तो नहीं हो जा रहा। बेसिकली ये है इसका मैप, वॉट एवर गाइज। हम और रेड टूर का ये रहा मिल। ब्लू टूर क्या हुआ? प्राइवेट है ये ब्लू टूर। रेड टूर में यहाँ जाएंगे यार, लोग बैठे हुए, वो क्लोज हो गई थी यार, बकवास नहीं। बाहर आए हैं कॉफ़ी लेने। हम लोगों ने डिनर किया था घर पे, आई मीन नॉट घर पे, इधर क्या नाम है वो, दिल्ली दरबार में। फिर हम लोग चले गए थे वापस, और फिर अब हम लोग आए हैं। मतलब बाकी सब आए नहीं क्योंकि किसी को कॉफ़ी नहीं पीनी थी, और उनकी कॉफ़ी वैसे भी हम लेके जा रहे हैं, तो हम बस आ गए हैं कॉफ़ी लेने यहाँ पे, ये और मैं ही।
ये दुल्हन दुल्हन क्यों बन गया भाई? बेगम ओए कहाँ जा रहा है भाई? हेलो मैं नहीं जा रही. Let's start. Oh my god. As you can see, yes, exactly. We have the surprise for you. Other flavors. You have like This is the assorted boxes. pomegranate and pistachio. And the other one is the, you can share. Okay. Let's change. मुझे नहीं अच्छी लगी. Try black mulberry. This is the blueberry and pistachio. अगर आदमी ऐसे मर के वापस आ रहा है तो कैपेडोशिया ही नहीं आना. नहीं जाना भाई. इस ठंड से परेशान हो गई हूँ. अब घर जाना है मुझे बस. नहीं जाना इस्तांबुल भी. एंड अगेन द मिसहैप गाइस. जस्ट बिकॉज हम 7 डिग्रीज से -8 डिग्रीज में आ गए थे एंड इट स्टार्टेड स्नोइंग इन कैपेडोकिया. आई फेल्ट सिक बैडली. बहुत ही गंदे वाला मैं बीमार हो गई. केप्ट आस्किंग फॉर फीवर मेडिसिन, वी केप्ट आस्किंग फॉर कोल्ड मेडिसिन. कोई मेडिसिन हमें कहीं से नहीं मिली. एंड देन लकीली आई वाज कैरिंग माई एंटीबायोटिक्स फॉर माई जॉ इन्फेक्शन. मैंने वो खा के अपना गला ठीक किया है. एंड मेरे घर वाले ये देख रहे होंगे इस टाइम पे एंड दे गोना एक्चुअली गिव मी अ बिग डांट, क्योंकि दे ऑलवेज आस्क मी टू कैरी स्टफ विद माई सेल्फ. ये मेडिसिन ये सब लेके जाना, ये है वो है. एंड मैं हमेशा हाँ कर देती हूँ बट मैं लेके नहीं गई. मम्मी प्लीज़. हम इसके बाद ज़्यादा कुछ भी नहीं कर पाए. हमने पूरे दिन टूर किया. उस टूर के बाद मेरी हालत वर्स होती गई. सो आई वॉज लेजिट डेड. मैंने कुछ नहीं किया कैपेडोकिया में 2 दिन तक. आई वॉज लाइंग ऑन माई बेड. all of my friends were going out and having fun and I couldn't do anything. And then we went back to Istanbul because हमारी फ़्लाइट थी. एंड मैं फ़्लाइट में पूरा दिन, जिस दिन हमारी फ़्लाइट थी उस दिन मैं बहुत बीमार रही. पूरा दिन बीमार रही मैं. जाके भी आई डिड नॉट गो एनीवेयर क्योंकि आई वॉज फीलिंग शिट एंड मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी. बट उसके नेक्स्ट डे में वन ऑफ माई फ्रेंड हैड अ फ्लाइट, तो हमें शॉपिंग करनी थी तो हम सब उसके साथ गए. एंड देन apparently he missed his flight as well. I'm gonna post a video saying that he missed his flight. ये आदमी मुझे सुबह बाय बोल के गया कि ओ बाय मैं जा रहा हूँ इंडिया वापस. भाई ये मतलब वापस आ गया, इसकी फ्लाइट छूट गई. और यू वोंट बिलीव, ये मुझ पे हंस रहा था 2 दिन पहले कि तू इतनी जल्दी एयरपोर्ट की जाती है. 4 घंटे पहले और जाओ लेट. टाइम से निकला था. क्या हुआ उस टाइम का? मैं किसी को नहीं बताएगी. ये ब्लॉग में डालेगा, पूरी दुनिया देखेगी इस बात को. सरप्राइज देंगे गाइस. फ्लाइट कैंसिल. भाई मैं और मेरा फ्रेंड हम लोग लंदन जा रहे हैं. बाकी सब जा चुके हैं. व्लॉग नहीं रुकना चाहिए भाई. कुछ भी हो जाए लाइफ में. फ्लाइटें छूट जाए. इस आदमी की कल भी फ्लाइट छूटी है. अब इसने फ्लाइट लंदन की कराई है और लंदन से दिल्ली की कराई है. भाई समझ रहे हो, डेप्थ समझो कितनी परेशान है वो अपने देश वापस जाने के लिए. मतलब इवेंचुअली वो अपने देश नहीं जा रहे हैं. मैं तो अभी भी अपने देश नहीं पहुंचा. हाँ मैं भी, मतलब अपना देश नहीं, अपना देश तो इंडिया ही है. बट भाई अब हम कैब का वेट कर रहे हैं. कैब नहीं आ रही है बहुत देर से. कैपेडोकिया मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई. आई मीन मैंने पूरा टूर किया. मैंने वैसे थोड़ी वीडियोस बनाई थी बट दैट डजंट मेक सेंस ऐसे कंबाइन करके, तो आई एम नॉट पोस्टिंग दैट. एंड देन वी फ्लू बैक टू इस्तांबुल बहुत डेड हालत में. एंड इस्तांबुल में भी ज़्यादा शूट नहीं मैंने कुछ करा, मतलब करा है बट इट डजंट मेक सेंस इफ आई पुट इट देयर नाउ. एंड उस टाइम में बस ये प्रे कर रही थी, आई रियली वांट टू गो बैक टू लंदन बिकॉज आई कांट टेक दिस शिट एनी मोर. आई एम लाइक सो सिक एंड आई वांट टू गो बैक एंड हैव प्रॉपर फूड एंड प्रॉपर मेडिसिन, तो ताकि मैं रिकवर हूँ ठीक से. यू गाइज आर गोइंग टू टर्की, आई थिंक आई हैव फ्यू कॉन्टैक्ट्स व्हिच माइट हेल्प यू. आई हैव गॉट द आइटिनरी कि मैंने अपनी ट्रिप कैसे कैसे प्लान करी, कहाँ कहाँ मैं गई, क्या क्या मैंने कितना स्पेंड किया. आई हैव दिस फुल आइटिनरी विद मी. इफ यू guys are interested, just let me know in the comment section or you can DM me on Instagram as well. If you guys need any contacts, I have a contact number of the driver who speaks a bit of English in Istanbul. I have the contact for the restaurant owner, the Delhi Darbar restaurant which was in Cappadocia. I have the owner's number there. He helped us sorting few things out as well. एंड आई हैव द कॉन्टैक्ट फॉर आवर ट्रैवल गाइड जिसने हमारा टूर बुक करा था इंस्टेंट. हमने 1 रात पहले बुक किया था तो हमें मिल गया स्लॉट लकीली. एंड आई वुड रियली रिकमेंड टू गो on a tour with Rabia. I will be your guide today.
Do you like it? Yeah. Perfect. Where did you come from, by the way? India. 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 She was very, very good. So yeah, these are the few of the shareable mishaps and problems. बाकी की problems personal हो गई थी, तो I really can't share that here. But trust me when I say कि बहुत सारे mishaps हुए थे, बहुत सारे mishaps हुए हैं. And that's it for today's video. I know it's a late video, but thank you for watching and cute little hearts for you. Bye.